Whether you are an IIM aspirant for the year 2025 or 26 or 27, all three categories, this video is going to be really, 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 really powerful and useful for everyone. Yes. Where we are going to talk about all about IIM UG interviews, be it IPM, be it BMS. We'll talk about what kind of questions or category of questions are actually asked in the interview. Then we'll also be preparing you for how to prepare for every category of such questions. Because ये अगर पता पड़ जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इंटरव्यू वैसे ही आधा आसान हो जाता है, राइट? देन व्हाट इज द वेटेज ऑफ इंटरव्यूज that's being kept by different IIMs? Very, very strong observations. This segment is going to be really important. From the interview patterns of IIMs from the previous years, 7 things that can actually kill your interviews because you know it that it can kill your interview, so you won't do it. That's why we have kept this particular segment also. Then, body language tips, attire tips at the last. So don't miss a fraction of a second of this particular video. But before we proceed, please subscribe Supergrad YouTube channel. तो सब्सक्रिप्शन का बटन आपके लिए फ्री है, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस ताकि आपके लिए हमेशा हम अच्छी वीडियोस लेके आए. चलो, without any further ado, let's get started now. So, 7 category of questions that are often asked. First is, the personality based questions, जिनको हम human resource questions या HR questions भी कहते हैं. इन questions की scripting अगर strong कर दी, then certainly half of the interview is in your favor. So what kind of questions can be classified into this? You would see that tell me about yourself. Tell us your strengths and weaknesses. Why IPM? Why management? Why BBA? All these sorts of questions fall under this particular category. These questions assess your self-awareness, they assess your values and motivation drive as well, right? Now, once these questions are asked, panel is able to actually evaluate your traits and personality completely. In fact, how do you actually think and what is your thought process and whether you're actually fit for a B school environment or not. So this is the first category of question. इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं एकेडमिक क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं सर. इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है. एकेडमिक्स के क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आने वाले टाइम पे भी आपको पढ़ाई करनी है, तो आपकी हिस्ट्री को चेक किया जाता है कि आप वहां पे कितना एक्टिव थे, तो आने वाले टाइम पे भी आप एक्टिव होने वाले हो. सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू 11th and 12th that are actually thrown at you, they can go deeper as well in some interviews like I am indoors. So also, based on that, panel is actually going to judge and have a conceptual clarity whether it's going to have the clarity that whether you have the conceptual clarity or not. Then the third category is demography and geography related questions. So questions related to your hometown, your state, your regional facts, like population, language, industries, how much you have know-how about the place you live in or the things around you comes under demography. Also the basic geography, कौन सी स्टेट में कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, नेशनल पार्क्स कौन से कहाँ पर हैं, कौन से हिल्स कहाँ पर हैं, एवरीथिंग इन एंड अराउंड. सो मैप्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो दीज आर 3 category of questions जो हमेशा पूछे जाते हैं. फोर्थ वुड बी जनरल अवेयरनेस. इट सम्स 2 things, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज. So, current affairs, economics, politics, tech, or major global, whatever is happening, the top 20 stories should actually fall into this particular top 20 stories of last 1 year fall into general awareness. Also, you find that, the very, very basic questions, who comes first and everything. जो मनोरमा ईयरबुक में चीजें दी हुई हो उसको एक बार ब्राउज करना जरूरी बैठता है जनरल अवेयरनेस के सेगमेंट के लिए. Then, situation-based questions or situational questions are actually asked to just check your problem solving skill sets. So hypothetical situations and scenarios like crisis management, ethical dilemmas, or leadership decisions would be given to you. They check your decision making ability via it, how much present you are in terms of presence of mind and maturity in problem solving cases, as I already mentioned. Then the 6th category of question is, अच्छा example मुझे देना चाहिए situation based question का. So if you were the CEO of this company and this situation happened, how would you react? इस particular category में आ जाएगा. या what was the toughest moment of your life and how did you overcome come that, वो situation based questions में आएगा. ठीक है. Now communication based questions next category होता है where they actually check your English, your fluency, articulation, and most importantly how clearly you think, right? So extempore can be one of the examples of a communication based questions, or asking an opinion about something. What do you think about this particular thing? What do you think about that particular thing?
ये जितने क्वेश्चंस हैं वो कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं. सो 6 कैटेगरीज हम डिस्कस कर चुके हैं. एचआर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस नंबर 1, जो बहुत पूछे जाते हैं. एकेडमिक क्वेश्चंस काफी सारे आईएम के जितने आईएम से वो पूछ रहे हैं. डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी is next. Then उसके बाद you would find that general awareness के questions, situational questions, communication based questions are 6 categories. 7th category is nothing but reasoning and puzzle based questions. Basically जब भी reasoning या puzzle based question पूछा जाता है, the primary aim over there is to test your acumen. So acumen is nothing but sum total of intelligence plus quickness. कितनी जल्दी आप अपने intelligence को focus कर सकते हो, right? But trust me, 99% of the people are unable to solve the puzzles. तो फिर एक्चुअल टेस्टिंग किस चीज की होती है? हाउ डू यू अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ पजल? तो मेनी मेनी स्टूडेंट्स गिव अप इनिशियली. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपसे कोई पजल या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको अप्रोच करो, प्रॉपरली टाइम लो, थॉट दो, एंड मेनी टाइम्स इंटरव्यूअर जस्ट आर एक्चुअली चेकिंग योर थॉट्स एंड नॉट द आंसर. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. They aren't getting the right answer, but about showing your approach and thinking process. So these are the 7 categories. अब हर कैटेगरी का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट. एचआर पर्सनली बेस्ड क्वेश्चंस, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कैसे करने के लिए आपको अपनी एचआर स्क्रिप्ट को तैयार करना पड़ेगा. जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं, बी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, योर हॉबीज, योर अचीवमेंट्स, इट ऑल्सो how do you see yourself 5 years down the line. जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं, यू कैन जीपीटी दैट कि कितने कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उनकी आंसर अपने हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट आपको लिखनी है in 2 areas. One is the language, second is the weight in every answer, and it should involve the storytelling also from your part, right? And every answer should be an individualistic answer. हर क्वेश्चन का आंसर किसी और से इंस्पायर नहीं हो सकता. जितना रियल रखोगे उतना अच्छा होगा. एक सजेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जितनी बार रफ कर कर फाइनली फेयर पे पहुंचोगे उतना अच्छा आपका अच्छा स्क्रिप्ट बनेगा. So make sure you're putting all your efforts into this particular segment, right? Second is academic questions, and really majority of you 12 boards हो चुके होते हैं. So हर बुक को, आपकी हर बुक को, आई एम टेलिंग यू नॉट ओनली योर फेवरेट सब्जेक्ट्स बट एवरी सब्जेक्ट, उसकी हर बुक को आप 3 से 4 घंटे जरूर ब्राउज करें. Look into graphs, look into figures, look into formulas, look into definitions, and I think anything can be asked. In fact, I am इंदौर तो डीप भी जाता है, तो concepts को भी strongly पढ़ना जरूरी है. But yes, browsing activity should happen with the watch. Summary जो papers chapters के पीछे दी हुई होती है उसको भी पढ़ो. चाहे तो कुछ अच्छे YouTube videos जो कि समराइज कर रहे हो किसी चैप्टर के अच्छी अच्छी चीजों को, वो भी देख सकते हो. सो मैं रिकमेंड करूंगा, सुपर ग्रेड्स के सीयूटी चैनल पे आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऐसे, जो कि हर चैप्टर को कहीं ना कहीं आपको बता चुके हैं, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो. देन डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी, जितना भी आपने अच्छा स्क्रिप्ट किया है उसमें आपने जो भी अपने बारे में चीजें लिखी हुई हैं, जिस प्लेस के बारे में लिखा है, जिस स्टेट के बारे में लिखा है, उसके बारे में आपको विकिपीडिया सर्च करना है एंड मेक नोट्स. यस, एंड यू मस्ट बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग. वॉच द मैप्स, डिफरेंट टाइप के मैप्स देखो. ठीक है, मैप्स आपको बहुत मदद करेंगे. सो बाउंड्रीज को चेक करो, रिवर्स को चेक करो, हिल्स को चेक करो, माउंटेन रेंजेस को चेक करो, किस पर्टिकुलर बाउंड्री को क्या कहा जाता है उसको चेक करो. कुछ अनकन्वेंशनल मैप्स जिसमें प्रीमियर्स या प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के नाम दिए हुए हो उनको चेक करो. कैपिटल्स जरूर चेक करो, करेंसीज को चेक करो टॉप कंट्रीज की, राइट? जो अभी जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में और थोड़ा सा जाके डीप डाउन करके पढ़ो, राइट? नाउ सी, be ready to answer questions like what is your city known for. Brush up on simple geography around you very clearly. And not only that, India की geography के लिए खूब सारे मैप्स देखो, एटलीस्ट 20-25 मैप्स जरूर देख के जाओ क्लोजली, एंड दिस एक्सरसाइज शुड बी डन एटलीस्ट फॉर 3 to 4 hours, राइट? एचआर क्वेश्चंस हो गए, एकेडमिक क्वेश्चंस हो गए, डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी हो गई. एंड एकेडमिक क्वेश्चंस में क्लियर बात कहूंगा, नॉट ओनली फेवरेट सब्जेक्ट, ऑल द 3 सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एज वेल एज अकाउंटेंसी. ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो अकॉर्डिंगली 3 सब्जेक्ट अपने पूरी तरीके से देख के जाओगे, क्वेश्चंस जरूर आएंगे. मैथ्स और इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स जरूर देख के जाइएगा, खूब सारे ग्राफ्स बनवाए जाते हैं इन इंटरव्यूज में, राइट? नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस
एटलीस्ट टॉप 20 स्टोरीज एज आई टोल्ड यू, उनकी समरी आप यूट्यूब वीडियोस, खूब सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जाके जरूर देख लीजिएगा। फोकस ऑन करंट अफेयर्स, बेसिकली सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स में पूछो तो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, तीन ये चीज ऐसी हैं जो बहुत पूछी जाती है, उनको नजरअंदाज मत करिएगा। तो पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो डॉटर लेवल पे बात करता हूँ, इनफैक्ट सीट्स भी आ जाएंगी, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स के अंडर ऐड कर लीजिएगा। जियो पॉलिटिक्स में खूब सारा कुछ चल रहा होता है टू कंट्रीज के बीच में, वो देख लीजिएगा। क्रिकेट इंडिया में बहुत पॉपुलर है, क्रिकेट रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेस बहुत चल रहा है, गुकेश ने ऑल क्या बोलते हैं नंबर 1 की सीट को हरा दिया, तो वो क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो हॉट टॉपिक्स आप लोगों को जरूर देखने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, सिचुएशनल क्वेश्चंस। सिचुएशनल क्वेश्चंस में सबसे अच्छी आंसरिंग है कॉमन सेंसिकल आंसरिंग। क्या सबसे अच्छा आंसर हो सकता है? सो think how would you react in real life situation like being a team leader or facing a problem. Practice what would you do if type of questions, ये इसी टाइप की सिचुएशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी जरूरी है एंड यू हैव टू बी लॉजिकल एज वेल एज along with honesty, ठीक है? नो नीड टू एक्ट परफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनेस्टी एंड लॉजिक, अगर दो चीजों का कॉम्बिनेशन बना के रखोगे आंसर में, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यस, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट आई एम रोहतक हर बार एक एक्सटेम्परे आपसे पूछेगा, तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इफ यू आर नॉट गुड एट स्पीच, ओके, या फिर इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है तो भी प्रैक्टिस करने के लिए आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारे चीजें अवेलेबल है। अगर पुराने चीजों की बात करूं तो मिरर प्रैक्टिस एक बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकती है। सो आपने जितने भी अच्छा स्क्रिप्टिंग करी हुई है क्वेश्चंस की, उनको अच्छी तरीके से रिहर्स करके जाना है। ऐसा नहीं लगे कि यार उसके बाद आप कहीं ना कहीं आपने रोट लर्निंग करी है और रट्टा मार के आंसर कर रहे हो, राइट? सो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना बोर हो जाओ तब तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियोस बनाओ, सेल्फी वीडियोस बनाओ, दे कैन हेल्प, योर सिबलिंग्स कैन रियली हेल्प इन कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो 1 मिनट एक्सटेम्पोर जरूर लो और इवेल्युएट करो खुद को फीडबैक दो एंड ट्राई टू इंप्रूव एवरी टाइम, एंड नंबर ऑफ टाइम्स ये चीज करनी है आपको। रीजनिंग एंड पजल बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी पूछे जाते हैं। सो लॉजिक के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा। प्लीज डू नॉट गिव अप एट पॉइंट नंबर 1। रीजनिंग एंड पजल बेस्ड क्वेश्चंस में बेसिकली आपकी अप्रोच को चेक किया जाता है, राइट? सो लॉजिकल रीजनिंग क्लासेस को याद रखिएगा अपने, राइट? नाउ व्हाट इज द वेटेज ऑफ इंटरव्यूज इन डिफरेंट आईएम्स? इंदौर के पास ह्यूमोंगस 35% वेटेज है। सो 65% वेटेज इज गिवन टू इंदौर एंड 35 टू आईएम इंदौर इंटरव्यू। शिलोंग उससे भी ज्यादा 50% वेटेज दिया हुआ इंटरव्यूज को, रोहतक 15%, रांची 30%, अमृतसर 25%। आईएम के वेटेज नहीं दे रहा, लेकिन उसका भी समय अराउंड 25-30 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल एंट्रेंसेस के थ्रू आपको एंट्रेंस दे रहा है, लाइक सैट, जेई एज वेल एज आईपी मेट इंदौर, सो सॉरी एज वेल एज बीएमएस एप्टीट्यूड टेस्ट दैट्स बीइंग कंडक्टेड बाय आईएम कोइखोर। सो इसकी वजह से वो वेटेज नहीं मेंशन कर रहा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस लगाई होगी कुछ बैकएंड पे, बट उसमें भी अच्छा खासा वेटेज होना चाहिए, right? Now, observation that's there from last year interview patterns, particularly जिन IIMs ने अब तक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए हैं उनके बारे में। Academics from 12th becomes the primary segment, particularly in IIM Indore. In fact, IIM Rohtak and Ranchi are also asking the questions, but IIM Indore काफी डेप्थ पे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड सब्सिक्वेंट क्वेश्चनिंग कर रहा है। सो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूछेगा, उससे रिलेटेड और कोई एक कॉन्सेप्ट, फिर आप जो भी कहोगे उससे रिलेटेड एक कोई और चीज पूछेगा। ये एक स्टाइल देखा गया है आईएम इंदौर का। नाउ आईएम रोहतक इज यूजुअली आस्किंग एन एक्सटेम्परे, सो आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा एक्सटेम्परे के लिए भी। आईएम रांची बिल्ड्स कॉन्वर्सेशन इन द इंटरव्यूज, दे वांट टू नो more about you, they want to explore your personality and are you actually fit for their seat. So काफी सारी चीजें आपकी लाइकिंग्स के अराउंड, आपकी हॉबीज के अराउंड, आपकी बर्थ प्लेस के अराउंड रह सकती हैं। सो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगा। आई एम इंदौर की एक और ऑब्जर्वेशन है कि इट बिल्ड्स द प्रेशर इन द इंटरव्यूज। यस इट डज। आप देख सकते हैं बहुत बार बिना इंट्रोडक्शन के इंटरव्यू को चालू कर दिया, बहुत बार आपके ऊपर जानबूझकर एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे गए बिना आपके क्वेश्चन के आंसर्स को सुने हुए, और बच्चा प्रेशर में जब आ जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को एक दूसरा पैनलिस्ट चेक कर रहा होता है, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। एक और ऑब्जर्वेशन है कि जीके एंड करंट अफेयर्स, पर्टिकुलरली डेमोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्म important source of the questions as well. So demography, hobby, extracurriculars, whatever you mentioned in your SOP or in profile would be asked.
सो जो कुछ आप लिख रहे हो थोड़ा सोच समझ के लिखो, उससे अराउंड जरूर क्वेश्चनिंग होगी, तो उसकी कीवर्ड्स की बहुत स्ट्रॉन्ग सर्च करके आपको आगे जाना है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लास्ट ईयर इंटरव्यूज। 7 मिस्टेक्स जो कि अक्सर इंटरव्यू को किल कर देती है, नोट्स बना दीजिए बिल्कुल। मेजरली ये देखा गया है आज की पर्सनैलिटीज, टाइप ए पर्सनैलिटीज हैं, जो भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है काफी बार उसको बीच में काट देते हैं। एक्टिव लिसनिंग ना होने की वजह से पैनल काफी बार क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं कर पाते और हम लोग आंसर करना चालू कर देते हैं, राइट। सो पुअर लिसनिंग स्किल्स कैन किल योर इंटरव्यू चांस, और बहुत हद तक करा भी है। इट्स अ मेजर 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 टर्न ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। सो मेक श्योर दैट यू लिसन टू देम प्रॉपरली, 1 सेकंड का पॉज लो, उसके बाद आंसरिंग करना चालू करो। इनफैक्ट काफी बार ये भी देखा गया है कि क्वेश्चंस के 2 भाग थे, कुछ स्टूडेंट्स ने एक भाग के बाद आंसर करना चालू कर दिया, एंड दैट कंप्लीटली टर्न्स ऑफ द interviewers. Displaying arrogance or lack of humility is another. So it can be, it can be in any form: overconfidence, name dropping, or showing off using superlatives while telling your achievements, right? तो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट कहीं पे भी अगर ऐसा लगा कि हम्बल नहीं है बंदा, तो सबसे पहले दोनों मिल जाती है उस चीज में। सो इंश्योर दैट यू आर taking some humility pills on the day of your interview and then only actually going for the interview round, right? Now, third, poor or unprofessional body language. Lot of people avoid eye contact while speaking. We have seen a lot of people slouching, fidgeting, or a lack of facial expression can also be treated as a slightly disinterest है इस बच्चे में और वो नहीं है। सो बॉडी लैंग्वेज अनप्रोफेशनल नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू सिट स्ट्रेट, लिसन प्रॉपरली, आंसर अकॉर्डिंगली, डोंट नोट लाइक दिस। मैंने देखा है काफी सारे बच्चे नोट करते हैं या इस तरीके से बैठते हैं, सीट पे बैठने का तरीका नहीं आता, सारी चीजों को चेक करके जाएगा, राइट। नाउ रीजन नंबर 4, वेट। So before we go to reason number 4, I have an announcement. If you are actually looking for IMB DBs and IMK's crash course, you can actually check toprankers.com, and we are giving you 15% discount. SG15 is the code that you can use. जितने students मुझे इस particular video में देख रहे हैं वो use कर सकते हैं. You are going to get 90 plus hours of intensive online learning with 100 plus lections in IMB DB last year, right? Now 120 plus topic tests you're going to get, unlimited subject-wise practice in practice mode, full length mocks for both the examinations, and certainly access to the admit batch, जो कि आपको इंटरव्यूज के लिए कंप्लीटली थॉरोली प्रिपेयर करवा रहा है। नॉट ओनली इंटरव्यूज के लिए, बाकी सारी सेगमेंट्स के लिए भी, लाइक बीट वैट और एसे राइटिंग और ग्रुप एक्सरसाइज, जीडी, एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज द बैच फॉर यू। ठीक है, चलो। और चाहते तो आप इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड के थ्रू भी जा सकते हो, उसको स्कैन करके, राइट। ठीक है, सो let's move ahead now and talk about the 7 mistakes that you can kill your interview. The fourth one is losing composure after tough questions, and it happens, it usually happens. 3-4 questions जो नहीं बने आपसे, उसके बाद आपका इंटरव्यू बिल्कुल। बट अगर आप मेंटल रिस्ट्रिक्शन पहले से डाल रहे हो एंड कहीं ना कहीं वो रेजिलियंस एंड कामनेस के साथ, यू कैन डू अ फैंटास्टिक कम बैक इन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू एज वेल। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को जिनका 3-4 क्वेश्चंस एक साथ लगातार खराब हो जाते हैं, उनको भी कम बैक करते हुए देखा है। ड्रेसिंग बिलो एक्सपेक्टेशंस इज अनदर थिंग। सो वेयरिंग कैजुअल्स, यूजुअली स्टूडेंट्स को पता होता है तो नहीं करते हैं, बट कुछ सेगमेंट होता है जो कर रहा है। रिंकल्ड क्लोथ्स, आयरन नहीं करके आते उन क्लोथ्स को। Ill-fitted clothes also, right? And you did not take the opportunity seriously. First impression are often visual, तो इसलिए make sure you're dressing at your best that day, right? Weak or generic response to tell me something about yourself. This is the question that carries a lot of weight. So इसके आंसर को कम से कम 50 मरतबा चेक कर लीजिएगा, मेंटर से अपने चेक करा दीजिएगा, अपनी स्टोरी को वीव करिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा. This is something that can decide your interview really, right? आगे फेलिंग टू जस्टिफाई वाई मैनेजमेंट वाई आईपीएम क्लियरली। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अलावा कोई अपना दूसरा पैशन या दूसरा इंटरेस्ट शो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका केस वीक हो जाता है एंड सेल्फ गोल के चक्कर में आउट हो जाते हैं, राइट। सो मेक श्योर कि मैनेजमेंट का आंसर, वाई मैनेजमेंट का आंसर आपका बेहतरीन हो और आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में फिट हो रहे हो, यही दिखाएं, ठीक है। और पूरे इंटरव्यू में इनफैक्ट सेल्फ गोल मत करिएगा, कहीं पे भी अपना पैशन किसी और तरफ ज्यादा मत दिखाइएगा। लाइक यू शोइंग योर इंटरेस्ट, मेरे को गिटार बजाना बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं ऐसा फील आ जाए
इंटरव्यूअर के माइंड में कि गिटारिस्ट है ये, ही इज नॉट फिट फॉर दिस पैशन और फॉर दिस पर्टिकुलर स्टडी। या फिर आपने चेस के अराउंड बोल दिया, या फिर आपने बैडमिंटन के अराउंड बोल दिया, या फिर आपने किसी और कोर्स के बारे में बोल दिया, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स या कुछ किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में ज्यादा बात कर ली, दैट कैन बी अ बिग 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 सेल्फ गोल, राइट? चलो, these are the 7 mistakes that you should avoid. Now, body language tips. Enter with confidence, but knock gently. तेज नहीं खोलना दरवाजे को. If it's a closed room, smile and seek permission. थोड़ा सा अलग तरीके से भी पूछ सकते हो. तो not necessarily may I come in. Would you please allow me to come in? Can be a better way of asking. Greet all panelists, not one. ये important है. Good morning, good afternoon, ma'am, sir. That this should be there. So a good body language tip to you all. ठीक है. उसके बाद sit with a poise. धीरे से चेयर को पीछे करो और पहले परमिशन जरूर लो, या फिर अगर वो आपको ऑफर कर रहे हैं सीट को तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. कीप योर बैक स्ट्रेट, shoulders relaxed, and most importantly, hands gently resting on your lap or table. लैप पहले प्रेफर करूंगा, टेबल नहीं. ठीक है. Maintain the eye contacts as well. So look at the person who is asking the question, but multiple panelists हैं तो shift your eyes to all the panelists, right? So ताकि उनको लगे आप सबसे regular eye contact कर रहे हो. ठीक है? Next, smile genuinely, not excessively. So smile करना बहुत अच्छी बात है. When good things are spoken at both the ends, you can smile. A pleasant, calm smile shows you approachable and confident. Avoid overdoing it. नकली स्माइल मत करना लेकिन, राइट? डोंट फोर्स इट ड्यूरिंग द सीरियस क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर. ठीक है. कंट्रोल्ड हैंड जेस्चर्स, काफी सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से नकल करते हैं या फिर हैंड जेस्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं. वो बहुत बड़ा नो है. एंड यूज मिनिमल नेचुरल हैंड जेस्चर्स व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. अवॉइड वेविंग हैंड्स टू मच, पॉइंटिंग फिंगर्स तो बिल्कुल मत करना, राइट? नॉट ओनली व्हेन अप्रोप्रिएट. A gentle nod is good, but an excessive nod is bad. ठीक है? So gentle nod चलेगा, लेकिन excessive nod bad है. तो but don't turn into a bobblehead as it's mentioned over here. Exit very gracefully, slowly, stand up slowly, smile, thank you for your time before exiting calmly. So उठकर जाने वाला वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका डिसीजन पेंडिंग है, आपके ऊपर नंबर चढ़ना पेंडिंग है. सो वो वक्त बिल्कुल जो लास्ट आपका इंप्रेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. These are the body language tips. Now, some attire tips before we say goodbye to you all. For boys, shirt, solid, light colored formal shirt. It can be white, light blue, pastel shades. Trousers, dark colored formal trousers. वैसे आप अपना कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं कुछ और. आप ऑल्टर भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ये मैं एक सजेशन के फॉर्मेट में लेके आया हूँ. सो शूज, पॉलिश फॉर्मल लेदर शूज, लेस वाले ध्यान रखना. ठीक है. एंड सॉक्स शुड बी मैचिंग. काफी सारे लोग का यहाँ पर ध्यान नहीं रहता. ठीक है. नाउ, सिंपल वॉच, सिंपल एनालॉग वॉच कैन डू नो फ्लैशी ज्वेलरी. सो ये ज्वेलरी उतार के जाना अगर पहन रहे हो तो, या फिर अगर चेन वगैरह पहनी हुई है तो वो भी निकाल के जाना, मतलब ज्वेलरी नहीं पहन के जाना उस दिन. Tie and blazer are optional, but a plus if worn well, right? And clean shave or neatly trimmed beard, very well groomed hair. ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रूमिंग टिप्स भी हैं. ठीक है. नाउ गर्ल्स के लिए फॉर्मल शर्ट प्लस ट्राउजर्स, सिंपल कॉटन और फॉर्मल साड़ी, सलवार सूट विद दुपट्टा नीटली पिंड. ऑप्शंस दो दिए हुए हैं यहाँ पे. क्लोज टो फॉर्मल शूज और फ्लैट्स. अवॉइड हील्स दैट क्लिक लाउडली. हील्स को अवॉइड ही कर दो यार, क्लियरली. ठीक है. Accessories, minimal jewelry, small studs. Watch is optional but classy. Makeup or grooming, natural look, neat hair, tied or pinned back. तो ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना. इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल व्हाइल यू आर एक्चुअली सेलेक्टिंग योर ड्रेस एंड एवरीथिंग. ठीक है. अगर इतनी चीजों का ध्यान रखा तो इजीली आपका IIM का इंटरव्यू निकलेगा. शर्त लगा के रख लो. आई एम राहुल वासवानी नाउ साइनिंग ऑफ, बट बिफोर आई साइन ऑफ, टेलीग्राम पे जाकर आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट free of cost fantastic content from Beam Supergrads. So this is all from my side. Thank you. Thanks a lot.